Hey everyone, so today we are going to read about the structure of a candle flame. Okay, structure of a candle flame. Please focus on the diagram here. The structure has four parts. The flame structure has four parts. This part, the outer one, second part, the middle zone, third part, the dark zone, and the last part, the blue zone. Clear? चार पार्ट है. The first part, outermost zone. Okay, this outermost zone is the hottest zone. It is the hottest zone. Why? Because complete combustion takes place here. Complete combustion. Why? Because you see, it is the outermost part, hence it gets the highest amount of oxygen. Clear? It gets the highest amount of oxygen. That's why it is the hottest zone. Clear? Getting my point? Okay. So outermost zone is the hottest zone because here complete combustion takes place. After complete combustion, what is produced? We know. Carbon dioxide and water is produced. Okay, CO2 and water is produced. Okay, clear? And the amount of heat is highest because it gets sufficient amount of oxygen. Done. Second part. Okay, one more thing. This is the non-luminous zone. देखो तो ये येलो कलर है, तो तुम्हें पता है ना luminous क्या है? Luminous means which have its own light. Look, it's transparent. You cannot see it normally. Clear? This is non-luminous zone. Clear? You might have seen where in the gas, तुम अगर साइड से देखते हो कोई बड़ा सा गैस जल रहा है और एक चूल्हा ऊपर, एक हांडी या कढ़ाई बिठाए हो तुम, तो ऊपर चीज़ कुछ हिलने जैसा लगता है ऊपर. क्या है वो? वही आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस जोन है. जो साइड से कढ़ाई के थोड़ा हिलता रहता है, वही वो फ्लेम का जोन है. वो कुछ और नहीं, वो बस नॉन लुमिनस है, ट्रांसपेरेंट है, तुम्हें दिखता नहीं है. क्लियर? मिडिल जोन. ओके, दिस जोन is yellow in color. Middle zone, it is yellow in color. देखो yellow है. Why it is yellow in color? Because of unburnt carbon particles. Okay, because of unburnt carbon particles. What do yellow color flame कब आता है बोला था मैं? Incomplete combustion में. और इनकम्प्लीट कंबस्शन में ही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होता है. क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होता. यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है, यानी लैक होता है. ये उतना हॉट नहीं है. इट इज मॉडरेटली हॉट, मीन्स मिडिल. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके. थर्ड वन, डार्क जोन. एक्चुअली here no combustion takes place. Okay, in this third zone, dark zone, here no combustion takes place. Clear? Why no combustion? Because oxygen is unavailable. तुम देखो ये दो लेयर के अंदर है, कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा यहाँ तक? Oxygen is unavailable. That's why it is what? It will not give you any kind of combustion. Clear? That's why, as because no combustion, it is black in color. क्योंकि combustion तो हुआ नहीं है, so carbon particles बहुत ज़्यादा है due to large number of unburnt carbon particles. बहुत ज़्यादा है बोल के black है. Clear? Getting my point, everyone? And यहाँ पे combustion नहीं होता. That's why it is the coolest zone of the candle flame. Coolest zone. Clear? समझ में आया? आउटर गया, मिडिल गया, डार्क गया, तीन ठो गया. समझना है इसको. लास्ट, द लोएस्ट ब्लू जोन. ये ब्लू जोन है. क्लियर? ब्लू जोन का खासियत क्या है? ओके, और तुम जान लो इट इज द बॉटम जोन ऑफ दिस फ्लेम.
ओके, सबसे आउटर मोस्ट जोन था, ये बॉटम जोन है, सबसे नीचे वाला जोन तुम देख सकते हो, आउटर मोस्ट जोन के ठीक नीचे तरफ ये जोन पाया जाता है। इसका कलर ब्लू क्यों है? बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। कैंडल में वैक्स होता है और ये कैंडल के बहुत करीब होता है, वैक्स के बहुत करीब होता है, तो वैक्स वेपर के जलने की वजह से ओके इसका कलर ब्लू जैसा है। वैक्स वेपर, तुम मत सोचना कि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है बोल के ब्लू, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंट है। हम बताया था ब्लू फ्लेम कब आता है, जब कंप्लीट कंबशन होता है ब्लू फ्लेम तभी आता है। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस जोन is called as blue zone, and here complete combustion of wax vapor takes place. That's why it is blue in color. So this is all about your candle flame. Clear? Done. Diagram भेजूंगा, notes भेजूंगा, पढ़ना है. Okay. Now let's come to a topic called as fuel. What is fuel? Fuel is a combustible substance. Fuel is a combustible substance which when burns give you a large amount of heat and light. एक ऐसा कंबस्टिबल चीज जब जो जले तो तुम्हें बहुत सारा लाइट देगा, बहुत सारा हीट देगा, उसी को हम बोलेंगे फ्यूल। क्लियर? बहुत तरह का फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है। सॉलिड में कौन कौन है? कोल है, वुड है, पेपर है, बहुत कुछ। लिक्विड में पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। गैस में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एक है तुम्हारा कोल गैस। ऐसा बहुत सारा फ्यूल है। सिर्फ फ्यूल एक्चुअली किस काम का? ये एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? फ्यूल का मेन काम है हीट देना, लाइट देना और एनर्जी देना, और एक चीज़ पॉल्यूशन ना करना। सीधी सी बात है। एक अच्छा फ्यूल जो है उसका कुछ कैरेक्टर्स है। क्या कैरेक्टर्स है बताता हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल फ्यूल? एक गुड फ्यूल में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? फर्स्ट थिंग, इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल। चीप माने सस्ता, सस्ता होना चाहिए। रेडिली अवेलेबल, हर जगह मिलना चाहिए। इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो कंबशन है ये मॉडरेट रहना चाहिए, और मॉडरेट में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये देना चाहिए। क्लियर? इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस फ्यूम। पॉइजनस फ्यूम यानी पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। क्लियर? इट शुड बी ईजी टू सेव एंड ईजी टू ट्रांसफ़र। सेव यानी स्टोर, यहाँ पे सेव एंड स्टोर लिख देना। इसको रखना चाहिए, अच्छे से रख पाना चाहिए, और ट्रांसफ़र इजीली होना चाहिए। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मोर देन रूम टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब रूम टेम्परेचर 28 डिग्री है, अगर किसी भी फ्यूल का किसी भी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से कम हो गया, यानी अभी जो नॉर्मली तुम्हारे रूम में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है वो, उससे भी कम अगर इग्निशन टेम्परेचर है, तो तुम ला के सोचो केरोसिन तुम घर में रखे हो, अपने आप जल जाएगा। तो ये गलत है। रूम टेम्परेचर 28 है, मतलब 30, 40, 50 ये होना चाहिए टेम्परेचर, ताकि अपने आप ना जले। जब तुम जलाओगे तब जले तो बेटर है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर? इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? लिखा गया है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg और 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। क्लियर? देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सिंपल थिंग है। कैलोरीफिक वैल्यू means it is the amount of heat
that is produced by burning 1 kg of fuel. 1 kg fuel को अगर तुम कंप्लीट कंबशन करते हो कितना हीट देता है, वही हीट है कैलोरीफिक वैल्यू. क्लियर? वही हीट है कैलोरीफिक वैल्यू. समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो इसका यूनिट है किलो जूल पर केजी. किसी किसी बुक में जूल्स पर केजी दिया होगा, किसी किसी का कैलोरीज पर जूल्स पर ग्राम दिया होगा, किलो जूल पर किलोग्राम, जूल पर ग्राम, किसी किसी में कैलोरी पर केजी भी दिया होगा. तो तुम्हारे बुक में मैं तो लिखा दूंगा 1-2 ठो, तुम्हारे बुक में जो दिया है तुम उसको भी ऐड करना और मुझे इवनिंग क्लास में बताना. समझ में आया? क्लियर? ओके. तो चैप्टर का मेन टॉपिक्स जो है वो आसपास ख़त्म हो चुका है. बस लास्ट टॉपिक है तो मैं तुम्हें बता दिया था. व्हाट हैपन्स व्हेन यू इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुम्हें मैं कल बताया था. वो क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, मैं तुम्हें भेज दूंगा. दूसरा, हाउ कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन. कैसे कंबशन ऑफ फ्यूल एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. लाइक हार्मफुल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है. इससे एसिड रेन होता है, इससे रेस्पिरेटरी डिजीज सब होता है, सांस नहीं ले पाते हैं. क्लियर? समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर्स है मेरे पास, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद. तुम लिख लो, अगर डाउट रहेगा तो हाँ इवनिंग क्लास में मैं रिवाइज करा दूंगा. ठीक है? ओके. हैव अ गुड डे एवरीवन.